Question number 8. Journalize the following transactions in the books of Dhoni Auto Car Center. ऑटो कार सेंटर है, हमें उनके बुक्स में इंट्रीज करना है, नो इश्यूज. 1 नवंबर को सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच and paid brokerage at the rate of 1% and amount credited to our account. ठीक है, पहले तो समझ लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी when purchase shares, invested in the shares, invested in shares, we have to pay the right some amount. It is an investment. So we have invested in the shares at that point of time, right? We have to pay brokerage. We have to pay some percentage of brokerage when we purchase the shares. बहुत सिंपल है. Example, I purchase 1 share of Reliance. If I purchase 1 share of Reliance for 1200 example, and I have to pay, suppose example, 10 rupees brokerage. So the cost of 1 share is not 1200, it is 1210. Brokerage paid at the time of purchase of shares will increase the cost of the shares. Like वो हमें asset जैसा होगा. Expenses paid at the time of purchase of fixed assets increases the cost of the fixed asset. हम fixed asset को add करते हैं, right? वैसे brokerage is, what is the brokerage? We can purchase the shares only through brokers. They are the middlemen. We have to open account with a broker. That account is called a demat account. If we want to trade into shares, हमें shares purchase करने, shares sell करने, for that purpose you should have a demat account. Dematerialized account उसका shortcut है या short form है demat account. Demat for your information. So जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके पास डीमैट अकाउंट होता है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट. सो यू हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट विथ ए ब्रोकर. उसके साथ एक और ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है. ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू यू परचेस सेल शेयर्स एंड दो शेयर्स आर पार्क्ड इन दिस डीमैट अकाउंट. ठीक है. सो जनरली लोग उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमैट अकाउंट अलग होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन. बट अभी फिलहाल डीमैट अकाउंट समझ लेना. सो जिस ब्रोकर के साथ हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, राइट, वो हमें, राइट, हम उनके थ्रू परचेस, डायरेक्टली शेयर्स नहीं परचेस कर सकते, राइट. देयर आर ब्रोकर्स, एक चेन है, उस चेन वो हमें फॉलो ही करनी होती है. सो ब्रोकर्स के थ्रू हम शेयर्स परचेस करते हैं एंड वी हैव टू पे फॉर देयर सर्विसेज. वो जो हमें शेयर्स परचेस सेल करने में जो हेल्प कर रहे हैं ना, उसके लिए वो चार्जेस लगाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज. सो मिडिलमैन को जो हम पे करते हैं, एग्जांपल हमें, you want to come to Pune and you want to stay on a rental basis and you are searching flat, so there are brokers who help you to find the flat, but you have to pay that broker some brokerage. आपको वो फ्लैट ढूंढ के देगा, वो सर्विस जो देगा आपको, उसके लिए you have to pay some service charges, that is called as brokerage. So when you purchase the shares, you have to pay brokerage to the broker. When you sell the shares, at the same time you have to also pay the brokerage. परचेस सेल करते टाइम हमें ब्रोकरेज पे करना होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू परचेस द शेयर्स, व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स, वी हैव टू पे ब्रोकरेज एंड दिस ब्रोकरेज इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एग्जाम्पल,
Today, I purchased one share of Reliance. Suppose on 1st March, I purchased one share of Reliance for 1,200. I paid brokerage of rupees 10. So the actual cost of my share is 1210, 1,210. So henceforth, that 10 rupees brokerage paid is also investment. It's not expense, it is investment. जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब जो एक्सपेंस कर रहे हो दोज एक्सपेंसेस आर आल्सो इन्वेस्टमेंट. जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, आई थिंक ऑन फ्राइडे मैंने बोला था कि when you purchase fixed asset, the expenses incurred at the time of purchase of fixed asset are fixed assets. Similarly, when you make some investments, आप लैंड परचेस कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो परचेस करते हो, दैट इंक्रीजेस योर वैल्यू ऑफ द लैंड. सिमिलरली, when you invested into shares, when you purchase the shares of a company, you have to pay brokerage to the broker जिसके साथ आपका डीमैट अकाउंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड वो brokerage is an not expense, it is an asset only. It will increase the value of your asset. Now आप ये नहीं बोलोगे कि आपको रिलायंस का शेयर 1200 में गिरा, आप बोलोगे रिलायंस का शेयर 1210 में गिरा. After some days, on 20th March, you sell that share for 1520. Example. You sold that share for 1000, take an example, 1500. At the time of sale as well, right? इसको हम बोलेंगे sale of shares. When you sell the shares, again you do it through broker, we have to pay the brokerage. हमें फिर से ब्रोकरेज परचेस करते टाइम दोनों टाइम हमें ब्रोकरेज पे करना होता है. ठीक है, we have to pay the brokerage. This is deducted from sales value. Sales value of investment. मतलब मैं एक शेयर 1500 पे सेल हो रहा है. आफ्टर 20 days, the Reliance share is now being traded at 1500. शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हुई है एंड आई डिसाइडेड टू सेल दिस शेयर जो मैंने 1200 में परचेस किया था 10 रुपीज ब्रोकरेज देके 1210. बट जब मैं सेल करूंगा आई हैव टू पे अगेन सपोज 10 रुपीज ब्रोकरेज. तो मुझे 1500 मिलेंगे नहीं. टू गेट दैट 1500 आई हैव टू पे 10 रुपीज ब्रोकरेज. तो द अमाउंट दैट आई विल गेट इज 1490. मैंने शेयर सेल किया 1500 का, तो ब्रोकर मुझे 1500 नहीं देगा. ही विल डिडक्ट ब्रोकरेज, उसके सर्विस के 10 रुपए वो डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में डालेगा 1490. सो यू कैन फाइंड, राइट, द प्रॉफिट इज not 200. Profit is not 200. Try to understand. आपको लगेगा कि प्रॉफिट 200 का है. No, profit is no longer 200. Profit is just, right, 1490 minus 1210, 180 का प्रॉफिट होना चाहिए. सॉरी 280 का प्रॉफिट होना चाहिए. ये 300 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा. 300 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा. टू अर्न 300 रुपीज प्रॉफिट यू ऑलरेडी स्पेंड 10 रुपीज एंड अगेन यू स्पेंड रुपीज 10. तो 20 रुपीज आपका एक्सपेंस भी हुआ है. सो एक्चुअली योर प्रॉफिट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1490 minus 1210, your profit is 280. It is, right, change. Delta stands for change. Change in, right, price of the share, 300 rupees, right? 1200 become 1500 on the stock exchange, 300 rupees. Brokerage paid at the time of purchase, ये आपका expense kind of काम कर रहा है. Brokerage paid on purchase 10 rupees. पहले आपको परचेस करना होगा एंड ऑन सेल आपको फिर से 10 रुपीज पे करना होगा.
टोटल आपका प्रॉफिट 280 है. So always remember, whenever you purchase investments and you have to make some expenses to purchase the investment like brokerage, to that extent आप 1200 भी पे कर रहे हो और 10 रुपए भी पे कर रहे हो. आपका आउटफ्लो 1210 का. आउटफ्लो कितना है? 1210. सो यहाँ पे आउटफ्लो इज 1210. सो आपने शेयर परचेस करने के लिए 1200 रुपए दिए और 10 रुपए दिए, बराबर ब्रोकरेज. तो आपका टोटल आउटफ्लो 1210 है. व्हेन यू सेल द शेयर्स आपको 1500 मिलेंगे, बट आपको 10 रुपए सर्विस के लिए देना है, ब्रोकरेज के लिए देना है. तो दिस इज योर इनफ्लो. Try to understand. So when you purchase something and you pay brokerage, it is to be added in the cost. When you sell something and you have to pay brokerage, तो पैसे रिकवर करते टाइम आपको ब्रोकरेज देना है. To that extent your sales value will decrease. इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है, right? Sale of shares we have to pay brokerage deducted from the sales value of investment. So यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की परचेस प्राइस 1210 है and selling price 1490 है, and the difference between them is a profit. Difference between them is a profit. तो यहाँ पे एंट्री आएगी. मैं यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूं आपके समझने के लिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट इज asset debit 1210 to bank account because demat account is linked to your bank account. बैंक अकाउंट. सो आपने 1200 प्लस 10 रुपीज ब्रोकरेज पेड किया. यहां पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट. आपके बैंक में 1500 नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में नेट आएंगे 1490. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 1490 टू इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस. कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 1290, सॉरी 1210 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 280. लिख लेना ये. एवरीवन हैज टू राइट दिस. इसमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है, बट दिस इज वेरी कंसेप्चुअल थिंग. ये चीज लिख लेना अभी तक जो मैंने लिख के दिया. मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट. पहले लिख लेना एंड देन आस्क मी डाउट्स इफ एनी. ठीक है, पहले लिख लो. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप शेयर परचेस करते हो तो आपको जो ब्रोकरेज पे करना है ना, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओनली. एंड जब सेल करोगे तो आपको 1500 मिलेंगे और आपको 10 रुपए पे करने. तो नेट कितना मिलेगा आपको? 1490. सो डिफरेंस बिटवीन
मतलब 1210 की इन्वेस्टमेंट, 1210 का शेयर आपने 1490 में सेल किया, दिस अ प्रॉफिट ऑफ 280. So there is no purchase account, there is no sales account for the investment. There is only one account. परचेस करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट, सेल करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट. इसलिए जो प्रॉफिट लॉस होता है तुरंत ढूंढना होता है. गुड्स के केस में क्या होता है, व्हेन यू परचेस द गुड्स देयर इज अ परचेस अकाउंट, व्हेन यू सेल द गुड्स देयर इज सेल्स अकाउंट. तो प्रॉफिट लॉस एंड में पता चलेगा, डिफरेंस बिटवीन परचेस अकाउंट सेल्स अकाउंट. इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट, सेल करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट. इसलिए हमें प्रॉफिट लॉस तुरंत ढूंढना होता है. आगे नेक्स्ट. होने के बाद यस लिखो, मतलब मुझे क्लिक होगा सो दैट आई कैन. ओके गुड. सो नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ है, ऐसे एक आधा ट्रांजैक्शन रहेगा जिसपे थोड़ा एलोबरेट करना पड़ सकता है, ठीक है. बाकी ऐसे हटके ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसको थोड़ा हम ध्यान से करेंगे. हमने सेल की है 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेड ब्रोकरेज 1% एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट. सो यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिखता हूँ. वर्किंग नोट सेल्स वैल्यू, ठीक है. 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, लेस ब्रोकरेज. सेल करोगे तो यू हैव टू पे द ब्रोकरेज, लेस ब्रोकरेज पेड. वन परसेंट इज 1000, सॉरी 99,000. Therefore net proceeds of investment, net proceeds, proceeds मतलब inflow, proceeds from investment, net proceeds from investment, net proceeds from investment 99,000. आगे ठीक है. चलो अब एंट्री, बट उन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस वगैरह ऐसे का कुछ लिखा नहीं है. हम इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो केयर सेंटर जर्नल, धोनी ऑटो केयर सेंटर जर्नल, ठीक है. डेट क्या है 2018 नवंबर 1, नवंबर 1, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. शेयर सेल हुए, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000. 2 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 99,000. एक्चुअली मुझे प्रॉफिट लॉस पता होने के लिए आई डोंट नो द कॉस्ट प्राइस. मुझे उन्होंने कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ लिखा नहीं है. चाहे तो ऐसे एक आधा उन्होंने सॉल्व में भी हो सकता है,
इलस्ट्रेशन में, आई डोंट नो कहाँ पे आपने देखा है, पहले तो मुझे बोल दो, पहले कभी देखा है आपने? एनीवन था क्या, कहाँ पे सॉल्ट में एक आता था क्या? देयर इज ओके, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे। नेक्स्ट, दिस एंट्री इज नॉट करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस एंट्री इज करेक्ट, बिकॉज एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस ढूंढते हैं, ठीक है। बट अब भी फिलहाल ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वो कितने में इन्वेस्टमेंट परचेस की थी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, आगे। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम एसोसिएशन कंपनी ₹2 लाख, बहुत सिंपल है, परचेसेस टू एसोसिएशन कंपनी 4। आप नरेशन लिखते चलो आगे से, आई विल स्किप द नरेशन। फोर्थ को, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एसोसिएशन कंपनी, 2 लाख के गुड्स हमने परचेस किए, एसोसिएशन कंपनी बिकम माय क्रेडिटर्स, 2 lakhs being गुड्स परचेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी 1,50,000, विराट को गुड्स सेल किए, विराट एंड कंपनी बिकम डेटर, विराट एंड कंपनी बिकम डेटर ऑन 6 नवंबर। विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,50,000, 1,50,000 being goods sold, being goods sold। नेक्स्ट, फर्स्ट डन, आगे, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया, हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो हमने एंट्री पास की है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया टू कैश लिख के आते हैं, अरे हम एक्सपेंस पे करें तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आना चाहिए, ठीक है। 8th, उसके बाद पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश 7,000। 10th को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 being printing and stationery expenses paid, being printing and stationery expenses paid। 10th हो गया, आगे। Purchase goods from Prakash and company 1,50,000 at 18% GST, Prakash and company become creditor, they become my creditor, तो मुझे उनको क्रेडिट करना होगा और मुझे उनको कितना पे करना है, 1,50,000 प्लस 18% GST। सो परचेस अकाउंट डेबिट 12th को परचेस अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,50,000 इज अ परचेसेस। जब गुड्स परचेस करोगे अगर आपको जीएसटी पे करना, इट इज असेट डेबिट होगा, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट 1,50,000 का 9%, IGST इनपुट अकाउंट डेबिट 1,50,000 का 9%, आई थिंक इट इज 13,500।
13,500। टू, क्या नाम था उसका, पार्टी का नाम क्या था, प्रकाशन कंपनी, टू प्रकाशन कंपनी। So 13,500, 26, 26 plus 27, 27, क्यों IGST, ओ CGST, SGST, हाँ ठीक है। आगे प्रकाशन कंपनी टोटल 26, 27 ऐड करने के बाद 1,77,000 being goods purchased and GST paid। ठीक है, 12th डन। अगर स्पीड ज्यादा है तो बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹10,000 at 12% GST, 10,000 plus 12% GST। ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पे लगता है ना जीएसटी, रेंट पे लगता है, कमीशन पे लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे लगता है जीएसटी, ऐसे कुछ नहीं, और उन्होंने लिखा भी है। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, तारीख क्या है 15th, ठीक है 15th। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000। CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट 10,000 का 6%, इट इज 600। SGST इनपुट 10,000 का 6%, 600 टू कैश 11,200, टू कैश 11,200। आगे बीइंग राइट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। आगे पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट करोगे ना तो डेबिट ही होगा, इनपुट रहेगा। सेल करते टाइम जीएसटी कलेक्ट करोगे तो आउटपुट रहेगा, क्रेडिट रहेगा। इनपुट ऑलवेज डेबिट, आउटपुट ऑलवेज क्रेडिट। देन परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स 1,20,000 at 18% GST and paid half amount immediately, अच्छी बात है। सो 1,20,000 का परचेस किया, 18% जीएसटी, उसमें से जो आएगा 50% तुरंत पे करेंगे। सो विक्रम एंड सन्स के टूवर्ड्स माय लायबिलिटी इज ओनली 50%, मैंने तो कैश 50% दे चुका हूं मैं। सो 20th 1,20,000, 20th नवंबर परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 के परचेस है, बट जीएसटी है उस पर, यस है ना, किसने नहीं बोला, यस। CGST इनपुट 1,20,000 का 9%, SGST इनपुट 1,20,000 का 9%, 10,800, 10,800। टोटल कितना पे करना है, जस्ट ये आपके समझने के लिए मैं टोटल ले रहा हूं। 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,41,600, 1,41,600। आपने 1,20,000 के गुड्स परचेस किए। अगर स्पीड ज्यादा है तो मुझे बोल देना, सर आप स्पीड में जा रहे हो, मैं स्लो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 1,20,000 के गुड्स परचेस किए, उसके साथ हमें टैक्स पे करना है, जीएसटी 18%, 9%, 9%। हमें टोटल 1,41,600 पे करना है, उसमें से 50% हमने तुरंत पेड किया टू कैश। 1,41,000 का हाफ, मतलब हमने पेड किया 7,0,8 70,800 हमने पेड किया। रिमेनिंग
हमें उस बंदे को अभी भी पे करना है. ही इज माई क्रेडिटर फॉर 50% ऑफ द अमाउंट. I owe him. He is my liability. Vikram and Sons. To Vikram and Sons. 70,800. Being goods purchased, 50% amount paid and 50% amount paid. 50% पेड किया मतलब भी 50% बाद में पे करना है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. ठीक है, जल्दी करो. 1,20,000 के गुड्स परचेस किए, जीएसटी टोटल मिला के 21,600 आ रहा है. 1,20,000 प्लस 21,600 टोटल हो गए 1,41,600. उसमें से 50% पे किया, कैश गोज आउट क्रेडिट, रिमेनिंग हमें उसको पे करना है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. तो अभी भी हमें विक्रम एंड सन्स को 70,800 पे करना है. कितना पे करना है? 70,800. नेक्स्ट, आगे. अच्छा देखो, यहां पे लिखा है पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट. प्रकाशन कंपनी को 10% डिस्काउंट पे पेड किया. आई थिंक पहले ट्रांजैक्शन हुआ है प्रकाशन कंपनी के साथ. हाँ देखो, प्रकाशन कंपनी को हमें 1,77,000 पे करना है. कितना पे करना है? 1,77,000 पे करना है. वो हमारा क्रेडिटर है. 12 नवंबर को हमने उससे गुड्स परचेस किए थे. अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजैक्शन, प्रकाशन कंपनी इज माई क्रेडिटर फॉर 1,77,000. आज मैं उसको पे करने जा रहा हूं. किसको? प्रकाशन कंपनी को 10% डिस्काउंट के साथ. मे बी मैं उसको तुरंत पे कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूं, इसलिए मुझे डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा. प्रकाशन कंपनी क्रेडिटर है, उसको पे करेंगे. अब उसको डेबिट करो. कैश गोज आउट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन क्रेडिट. सो विच इज द डेट? The date is 25th. 25th. Prakash and company account debit. $1,77,000. इतना ही था ना? 1,77,000. यस. 2 कैश, 2 डिस्काउंट रिसीव. वी नो 1,77,000 में से 10% डिस्काउंट मिलेगा. गेन है, गेन क्रेडिट. 17,700 का डिस्काउंट मिलेगा. सो 1,77,000 में से 17,700 जाएंगे तो कितना बचेगा? मेरे हिसाब से 1,59,300. 1 कैरिड 60 70. यस, 1,59,300. चाहिए तो चेक करो. मैंने पहले 17,000 माइनस किया. 1,77,000 में 17,000 गया तो 1,60,000 बचेगा. फिर मैंने 700 माइनस किया. सो 1,60,000 में से 700 गया तो 1,59,300 बचेगा. सो एक्चुअली आपने उसको कितना पेड किया? 1,59,300 आफ्टर 10% डिस्काउंट. बीइंग कैश पेड आफ्टर 10% डिस्काउंट. ठीक है. अब प्रकाशन कंपनी क्रेडिटर था 1,77,000, डेटर हो गया 1,77,000. सो आप देख सकते हो प्रकाशन कंपनी का क्रेडिट जितना है उतने डेबिट है. बैलेंस इज जीरो. प्रकाशन कंपनी हमारे बुक्स में जीरो बैलेंस है. अब उसको कुछ पे नहीं करना, ना ही उससे कुछ लेना है. आगे, इनवाइस गुड्स टू संजय रुपीज. इनवाइस टू संजय मतलब संजय को सेल किया है. गुड्स सोल्ड टू संजय 60,000. संजय डेटर हो गया, उसको डेबिट करो एंड सेल से उसको क्रेडिट करो. 30th नवंबर या 30th अक्टूबर. अगर ये नवंबर है तो ये डेट्स गलत है, बराबर ना? अगर वो नवंबर है तो ये दोनों डेट्स गलत है. 30 रख देना. ठीक है. सो इनवाइस गुड्स टू संजय 60,000. संजय को सेल किया. संजय टू सेल्स 60. संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000 to sales 60,000. Being goods sold to Sanjay on credit.
30th डन। 30th के बाद आगे संजय रिटर्न्स गुड्स 10,000। अच्छा, संजय ने गुड्स रिटर्न किए 10,000 के। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब हमने उसको सेल किया, संजय डेटर बन गया, संजय टू सेल्स एंट्री आ गई। जब वो रिटर्न करेगा तो सेल्स कैंसिल करना होगा। सेल क्रेडिट होता है, सेल को कैंसिल करने के लिए सेल को डेबिट किया जाएगा, बट हम एक अलग अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है सेल्स रिटर्न। हमें इसकी एंट्री रिवर्स करनी है, हमें इसकी एंट्री रिवर्स करनी है। लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू संजय, टू संजय। एंड संजय को हम क्रेडिट नोट देंगे, हम संजय को इश्यू करेंगे क्रेडिट नोट, और उसमें लिखा होगा संजय योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स फॉर गुड्स रिटर्न बाय यू। तूने जो गुड्स रिटर्न किए हैं उसके लिए हमने तेरा अकाउंट हमारे बुक्स में क्रेडिट किया है। तू हमारा डेटर था 50,000 का, बाद में हमें तुझे क्रेडिट किया 10,000 का, तो अब तेरे से हमें 50,000 ही लेने हैं। हमने तुझे 60,000 के गुड्स सेल किए थे, उसमें से 10,000 तूने रिटर्न किए, मतलब अभी तेरे से कितना लेना है 50,000। तू हमारा डेटर है खाली 50,000 का, ठीक है। संजय से 50,000 लेने हैं। कितने लेने हैं? 50,000। आगे देखते क्या हुआ। संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड, संजय से 50,000 लेने, 60 का सेल किया था, 10,000 के रिटर्न किए उसने, तो संजय से 50,000 लेने, उसके पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उससे पैसे नहीं मिलेंगे, पूरे पैसे रिकवर नहीं होगा, हमारा बैड डेट्स हो गया। When debtor, Sanjay is my debtor, became insolvent, I cannot recover the entire amount, that becomes my bad debts। वो क्या बन जाता है? बैड डेट्स। लॉस हो गया मेरा इसमें। अब देखो क्या हुआ, संजय became insolvent and recovered only 50 पैसे ए रुपी। 100 पैसे में से 50 पैसे रिकवर हो रहे, मतलब 50%, ओनली 50% एज ए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। दिस इज नॉट डिस्काउंट। इंसॉल्वेंट होने पे डिस्काउंट नहीं होता है, इंसॉल्वेंट होने पे जो पैसा मिलता नहीं उसको बैड डेट्स बोलते हैं। हमें संजय से 50,000 लेने, कितने लेने? 50, उसमें से 50% ही आ गए। 50,000 में से 25,000 ही रिकवर हुए। मैं संजय को बोल रहा हूँ अरे भाई बाकी 25,000, वो बोला मैंने हाथ ऊपर करके रखा है, मैं इंसॉल्वेंट हुआ हूं, मेरे से मेरी जितनी प्रॉपर्टी सब खत्म हो चुकी है, मैं तुझे पैसे दे ही नहीं सकता। ये हो गया बैड डेट्स। सो एंट्री जितने रिकवर हुए उतने ले लो। 30th बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो कुछ भी है, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 आ गए। डोंट कॉल डिस्काउंट, इट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस, बैड डेट्स इज लॉस, लॉसेस आर डेबिटेड 25। 2 संजय का अकाउंट क्लोज कर दो, संजय अकाउंट क्रेडिट 50 being 50% amount recovered, balance bad debts। अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रफ्ट, मतलब उसके पास पैसे नहीं आपको देने के लिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब, राइट, इसका मतलब, ठीक है, उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते, बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया। लाइक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, बैंक्स में बहुत लोग लोन लेते हैं, पता है ना आपको, वो लोन रिपे नहीं करते, मतलब बैंक ने लोन दिया है लेकिन बैंक को पैसे नहीं मिलते रिटर्न, बैंक उसको बैड डेट्स बोलता है, जिसको टेक्निकली बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंक उसको बैड डेट्स नहीं बोलता, बैंक उसको एनपीए बोलते, बट इट इज नॉट लेस देन बैड डेट्स, सेम ही। सो आपने सेल किया है संजय को 60,000 का, उसमें से 10,000 के गुड्स उसने रिटर्न किए, मतलब उसे 50,000 लेना है, बट आपको 50,000 मिले ही नहीं, आपको खाली 25,000 मिले, 50% ही मिले, रिमेनिंग 25,000 आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ,
अगर टाइम चेंज होता है, संजय के अच्छे दिन आते हैं और बाद में संजय 25,000 लेके आता है, सपोज क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, आज हमारा लॉस है, बैड डेट्स इज लॉस डेबिट, 2 3 4 5 साल के बाद संजय के अच्छे दिन आते हैं एंड संजय रिकवर कैन पे, संजय हमें आके बोलता है देखो 4 5 साल पहले बैड डेट्स हुआ था, मैं आपको 25,000 नहीं दे पाया, ये ले लो 25,000 आपके, तब एंट्री आएगी 4 5 साल के बाद जब वो हमें बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, पहले बैड डेट्स हुआ, आज 25,000 नहीं आए, क्यों नहीं आए, बिकॉज वो दे ही नहीं सकता, उसकी इच्छा भी होगी तो भी नहीं दे सकता, बस उसके पास कुछ है ही नहीं, कंगाल हो गया वो, कंगाल, तो वो हमारा लॉस हो गया। 4 5 साल के बाद वो आके हमें 25,000 देता है, तब एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इनकम अकाउंट रहता है वो, क्रेडिट 25,000, जितना भी लाके देगा 25,000 से ज्यादा नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 25,000 ही देगा वो, जितना भी देगा उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, दैट इज इनकम। बच्चे एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू संजय, दे डोंट अंडरस्टैंड हमने यहाँ पे संजय का अकाउंट क्लोज कर दिया है, एक बार वो इंसिडेंट हुआ तो मैं लाइफ में उसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उससे पैसे आएंगे नहीं, मैं उसको सेल ही नहीं करूंगा, मैंने मेरे बुक्स में उसका अकाउंट हमेशा का क्लोज कर दिया। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते और उनका लोन रिपे नहीं करते, बैंक फिर से आपको लोन नहीं देती। अरे बैंक का जाने दो, आप टेलीकॉम ऑपरेटर का देखो, आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है, पोस्टपेड कनेक्शन लिया किसी सपोज एयरटेल के साथ, आप उनका पेमेंट नहीं करते हो, आपका सिम ब्लॉक कर देते और बाद में आप फिर लेने जाते हो तो आपको सिम नहीं देते वो, क्यों, बिकॉज पहले आपने डिफॉल्ट किया उनका। सो जब संजय ने डिफॉल्ट किया है तो हम बाद में उसको सेल नहीं करेंगे, बट अगर वो बाद में ऑन हिज ओन कम्स एंड गिव्स यू 25,000, तब एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड नॉट संजय अकाउंट। लिख लेना, when bad debts is recovered, top of the page, when bad debts is later on recovered, लिख लेना everyone, when bad debts is later on recovered, the entry is, when bad debts is later on recovered, entry is cash account debit, cash account debit to bad debts recovered account, right, cash debit to bad debts recovered account, क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल, फर्स्ट मार्च 2016 sold goods to Ram, rupees 2 lakhs. June 16, Ram was adjudicated. Ram was adjudicated मतलब declared by the court. कोर्ट डिक्लेयर करते उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। राम वॉज एडजुकेटेड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसे ए रूपी could be recovered from his private estate. From his private estate. राम से कितने लेने, 2 लाख लेने, वो हमारा 2 लाख का डेटर है। हाउएवर वो एडजुकेट हुआ एज ए इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसका एडजुकेट किया, कोर्ट ने डिक्लेयर किया कोई इंसॉल्वेंट है, उससे अब कोई पैसा नहीं मांगेगा, कोर्ट उसकी पूरी प्रॉपर्टी टेक ओवर करती है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट लेती है, वो प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है एंड उससे जो पैसे आएंगे वो क्रेडिटर्स को बांटे जाएंगे। राम के जो क्रेडिटर्स है वो राम को बॉदर नहीं करेंगे, कोर्ट विल लुक आफ्टर एवरीथिंग,
कोर्ट विल टेक द प्राइवेट एस्टेट ऑफ द राम, उसका ऑक्शन होगा, उससे जो भी पैसे मिलेंगे कोर्ट विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द क्रेडिटर्स, इन पूरे तो नहीं मिलेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेंगे। एंड 40 पैसे ए रुपी, मतलब 40% किसको मिले, हमें मिले। सो 2 लाख में से 40% ही रिकवर हुए, 60% बैड डेट्स हुआ। ठीक है, आगे 15 में 2018 राम पेड या recovered rupees 1 lakh फ्रॉम राम। 2-3 साल के बाद राम ने हमें आके खुद होके 1 लाख दिए। ठीक है, एंट्री करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट मार्च 2016 को हमने राम को सेल किया, राम डेटर हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का सेल हुआ, 2 लाख। राम हमारा डेटर है 2 लाख का, मतलब हमें राम से 2 लाख लेने, हमें राम से 2 लाख लेने हैं। फिर 30 जून को राम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और हमें 40 पैसे ही मिले, कैश अकाउंट डेबिट। वन 80,000 रिकवर कर पाए हम, हमें 80,000 मिले। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट 60% का बैड डेट्स हो गया, 1,20,000 रिकवर नहीं कर पाए। लॉस है यार, पैसे अगर कस्टमर सेल कर रहे हो बट पैसे नहीं मिल रहे, ये लॉस ही है ना, बैड डेट्स। 2 राम का अकाउंट क्लोज कर दो, 2 राम, कितना, 2 लाख, राम का अकाउंट क्लोज हो गया। फिर 2-3 साल के बाद राम खुद होके आया और बोलता है कि 1 लाख ले लो। आप बोलोगे 1,20,000, देखो वैसे भी ही इज नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू पे यू, कोर्ट ने बोला है उससे पैसे नहीं ले सकते आप, बट ऑन हिज ओन वो खुद होके बोल रहा है कि ले लो भाई 1 लाख बाद में। तो वो राइट, एक आई विल से जेन्युइनली वो बोलता है कि ले लो पैसे, मतलब इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। ही इज रेडी टू पे यू, एक्चुअली उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज कोर्ट प्रोटेक्ट्स इंसॉल्वेंट पर्सन, रास्ते पे आ चुका है वो। बट बाद में मे बी बिकॉज सम गुड फॉर्चून ही मे गेट द मनी एंड ही कैन गिव यू। जैसे अमिताभ बच्चन वॉज वंस डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अमिताभ बच्चन भी इंसॉल्वेंट हुआ था, बट लैटर ऑन राइट हिज फॉर्चून टर्न एंड नाउ यू नो द वर्थ एंड एवरीथिंग। सो ऐसे नहीं कि इंसॉल्वेंसी होना मतलब कुछ क्राइम है, बट हो सकते हैं, बट बाद में उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो खुद होके आपको पैसे देने आया है। एक्चुअली उसने 1,20,000 देने चाहिए आइडियली, बट वो बोलता है 1 लाख तो ले लो। आप हैप्पी हो, मोर देन हैप्पी हो कि आपने जिसको बैड डेट्स बोला था, 1,20,000 का लॉस बोला था, उसमें से 1 लाख रिकवर हो, उससे और क्या चाहिए। आप बोलोगे नहीं नहीं 20,000 भी दे, अरे वो जितना दे रहा है ले लो पहले। ठीक है, ऐसे हो सकता है कल और जाके वो 20,000 लाके देगा आपको। ठीक है, सो एंट्री आएगी 2018 कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख to bad debts recovered. Bad debts is expense loss account, bad debts recovered is a gain account. ठीक है, तो ये भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलो लिखो, जल्दी करो, मेक इट फास्ट। होने के बाद यस लिखो सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड। ओके गुड, ठीक है गुड।
ठीक है. सो दिस वाज अबाउट बैड डेट्स रिकवर्ड. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और जो ट्रांजैक्शन नए, गिव टाइम, उसको समझो. ठीक है. हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं. शायद से उसमें ओपनिंग एंट्री है. क्वेश्चन नंबर 9. I don't know. There are many students who are absent today. I don't know why. ठीक है. So question number 9. They have given you balances. Hero Enterprises. ठीक है. कोई इश्यू नहीं. They have given balances. So 1st April 19 को हमारे पास there are some debit balances. There are some credit balances. ठीक है. ओपनिंग एंट्री डेबिट बैलेंस को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट किया जाएगा, डिफरेंस कैपिटल रहेगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन द बुक्स ऑफ हीरो इंटरप्राइजेस. लेट्स स्टार्ट. इन द बुक्स ऑफ हीरो इंटरप्राइजेस. इन द बुक्स ऑफ हीरो इंटरप्राइजेस. डेट पर्टिकुलर्स वो आप लिख लेना. ठीक है. मैं डायरेक्टली एंट्री लिख रहा हूं. हाँ. डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज 2019 April 1st. डेबिट ऑल डेबिट बैलेंसेस असेट्स. कैश एट बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 80,000. बैंक अकाउंट डेबिट 80,000. देन Ram Rahim sundry debtors. Ram and Rahim. Be very specific. Ram account debit 20,000. Rahim account debit 30,000. Ram account debit 20. Rahim account debit 30. Next. Stock 55,000. Stock is asset 55,000. ठीक है. Then building account debit 1,50,000. इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको पहले मीनिंग समझाऊंगा, ध्यान देना. 1 अप्रैल 2019 के बिगिनिंग में मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 1 अप्रैल 19 हमारे बैंक अकाउंट में 80,000 थे. हमारे बैंक में कितने थे? 80. राम से हमें 20,000 लेने थे. मतलब एक्चुअली लास्ट ईयर में हमने राम को सेल किया था, उसमें से 20,000 अभी भी बाकी है. होपफुली इस साल में वो 20,000 रिकवर हो. रहीम से 30,000 लेने बाकी है. वो हमारे मतलब उतने पैसे लेने हैं उनसे. स्टॉक हमारे पास 1 अप्रैल को हमारे पास मॉर्निंग में 55,000 का स्टॉक है. वो लास्ट ईयर का स्टॉक इस ईयर में आया है. एंड हमारे पास जो बिल्डिंग है वो 1,55,000 की बिल्डिंग है. 1 अप्रैल 19 की सुबह सुबह हमारे पास ये सब चीजें हैं. आगे नेक्स्ट. अब क्रेडिट करना है. स्वप्ना इज माई क्रेडिटर 20,000. रोहित इज माई क्रेडिटर 30,000. स्वप्ना एंड रोहित 20-30. टू स्वप्ना. टू रोहित 30. मतलब ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं. सपना मेरी क्रेडिटर है. लास्ट ईयर में मैंने सपना से गुड्स परचेस किए होंगे, बट उसमें से 30,000 मैंने उसको दिए नहीं. मतलब बिगिनिंग में, इस साल के बिगिनिंग में ही मुझे 30,000 पे करने हैं. मतलब लास्ट ईयर का आया है. तो होपफुली मैं सपना को इस साल में 20 दे दूंगा एंड रोहित को 30,000 दे दूंगा. दीज आर माई लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग. दीज आर माई असेट्स एट द बिगिनिंग. दीज आर माई लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग. ठीक है. आगे 2 बैंक लोन. लोन भी है. टू बैंक लोन. कितने का लोन है?
50,000 का बैंक लोन है. सो ये सब चीजें 31 मार्च की 1 अप्रैल को आए एंड देयर इज अ कैपिटल. और आप देखोगे देयर इज नो इनकम नो एक्सपेंस अकाउंट, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, राइट, ठीक है. सो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते और बचते खाली असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. अच्छा बोलो कितना कैपिटल आएगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट. सो असेट की टोटल कितनी है, असेट 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख 30, 1 लाख 30 प्लस 50 1 लाख 80, 1 लाख 80, 1 लाख 80 प्लस 5 1 लाख 85, नीचे का 5 1 लाख 90. सो 1 लाख 50 ऐड करना है, 1 लाख 90 में 1 लाख 50 ऐड करना है, 10 ऐड करता हूं, 2 lakhs, 2 lakhs प्लस 1 लाख 40 3 लाख 40. टोटल असेट्स आर 3 लाख 40. टोटल लाइबिलिटीज अभी तक है 20 प्लस 30 प्लस 50 80 1 लाख. लाइबिलिटीज आर 1 लाख. एंड यू नो द इक्वेशन, assets are equal to capital plus liability. Assets are 3 lakh 40, assets are 3 lakh 40. अच्छा बिल्डिंग इज 1 लाख 50, oh सॉरी, सो ये आ जाएगा 35,000. टोटल असेट्स की टोटल आएगी 1 लाख कितना आएगा 3 लाख 55 एंड लाइबिलिटीज आर 1 लाख. यू नो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. सो 3 लाख 35 माइनस 1 लाख इज अ कैपिटल 2 लाख 55,000, 2 लाख 35,000. चेक करो बराबर है क्या मेरा, रॉन्ग है तो मुझे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर रॉन्ग है तो आप मुझे बोल सकते हो, प्लीज कंफर्म. हाँ ठीक है, नहीं आगे यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट क्लियर है यहां तक, आगे. बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट इन, being opening balances brought in. Being opening balances brought in. Next. नहीं रे, अच्छा लेट मी चेक. थ्री लाख 35 ये वो 3 लाख 35 माइनस 1 लाख इज 2 लाख 25. ठीक है, ये एंट्री आनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द ईयर, ओपनिंग एंट्री. उसको क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे. 1 अप्रैल को परचेस गुड्स वर्थ रुपीज, परचेस गुड्स वर्थ रुपीज, ठीक है. अच्छा 2 लाख, हाँ 35 चाहिए, ठीक है ठीक है, माइनस 1 लाख, ठीक है आगे. परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी, लेस 10% टीडी. टीडी कभी भी लेते नहीं, 10% माइनस करके रिकॉर्ड होगा. 1,50,000 का 10%, लास्ट डेट ऐड करो 15,000, 1,50,000 माइनस 15,000 1,35,000 पे ट्रांजैक्शन होगा. सो प्रशांत एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट करेंगे, परचेस को डेबिट करेंगे. अप्रैल 1 परचेसेस टू प्रशांत एंड कंपनी. 1,50,000 माइनस 15,000 समझने के लिए आपको. सो आपके परचेस है 1,35,000 के टू प्रशांत एंड कंपनी. 1,35,000 being goods purchased from credit. ठीक है, नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% टीडी ऑन क्रेडिट. 70 का 10%, 10% मतलब लास्ट डेट हाइड करने का हमेशा. 70,000 का लास्ट डेट हाइड करो 7,000. सो 63,000 पे अमित शर्मा को हमने गुड सेल किए. अमित शर्मा हमारा डेटर हो गया, डेबिट करेंगे अमित शर्मा को 4 अप्रैल. अमित शर्मा अकाउंट डेबिट.
70,000 माइनस 10,000, ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। 63,000 का सेल है, टू सेल्स। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फोर्थ डन। आगे परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 lakhs at 28% GST अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी बैंक से पे किया, वो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है बराबर ना। एनईएफटी बैंक से के थ्रू पेड हुआ है। 2 लाख के गुड्स 28% जीएसटी, 14% 14% ऐसे बाइफर्केशन रहेगा, ठीक है। 14% 14% बाइफर्केशन रहेगा। सो नाइन्थ को हम एंट्री डालेंगे 2 lakhs की। चलो 9 अप्रैल परचेसेस अकाउंट डेबिट, टू lakhs परचेस अकाउंट डेबिट 2 lakhs आ गया। 2 lakhs यस। सीजीएसटी इनपुट 2 lakhs का 14%, 10 राइट। 14 1% आएगा 2000, 2000 का मल्टीप्लाई बाय 28,000। एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 28। देखो टैक्स ऑलमोस्ट 56,000 टैक्स पे कर रहे हो, बट डरना मत। क्यों? बिकॉज ये टैक्स आपकी असेट है। ये टैक्स क्या होती है? आपकी असेट है, ठीक है। सो 2 आप एनईएफटी के थ्रू पे करो टू बैंक, 2,56,000। भले आप 56,000 का टैक्स पे कर रहे हो, बट ये आपकी असेट है। बाद में जब आप सेल करोगे तब जो टैक्स कलेक्ट करोगे उसके साथ सेट ऑफ करोगे। सो जीएसटी पे करने में कोई गुंजाइश नहीं इफ यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय ऑफ रुपीज 90,000 एट द रेट ऑफ 28% जीएसटी। 90,000 के गुड्स सेल किए, 28% जीएसटी। सेल करते टाइम जो जीएसटी रहेगा वो लाइबिलिटी रहता है, वो आउटपुट रहता है, बिकॉज वी कलेक्ट, ठीक है। सो आदित्य राय से 90,000 प्लस 28% कलेक्ट करेंगे 12th को। आदित्य राय अकाउंट डेबिट, वो डेटर हो गया। नरेशन लिखना, एटलीस्ट बीइंग लिख के छोड़ देना। आदित्य राय अकाउंट डेबिट, लास्ट 5 मिनट्स, ज्यादा मैं लूंगा भी नहीं। सो कितना देखेंगे, डोंट वरी। टू सेल, इतना तो फिक्स है, 90,000 का सेल है। जो आता है पहले वो लिखते जाओ, हमेशा याद रखना। कभी भी एंट्री करते टाइम जो आपको पता है ना वो पहले लिखो। टू टू आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट, आउटपुट हमेशा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी। 90,000 का 14%। टू एसजीएसटी आउटपुट, 90,000 का 14%। So that is 5,600 I think. 14 या 5,600 परफेक्ट। सो 10,000 प्लस 1,200 होगा 1,02,000। 10,000 1,01,200। चेक करो परफेक्ट है क्या? गलत भी हो सकता है मेरा, ऐसे कुछ नहीं है। अरे कुछ गलत है क्या? 90,000 का, ओ ये गलत है मेरा, 14%। ओ गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज 12,600। गलत है परफेक्ट, 12,600 होना चाहिए। सो 12,600, 12,000, 90 प्लस 10 1 लाख, प्लस 10 1 लाख 10, प्लस 2 1 लाख 14, प्लस 600 1 लाख 15,200, 1 लाख 15,200। चेक करो, 90,000
plus 28% is 1,15,200 being goods sold. ठीक है, आगे। हाँ, इनपुट आउटपुट सेट ऑफ करने की एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इनपुट आउटपुट भी सेट ऑफ किया जाता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे, यू विल लर्न इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन सी इंटर। आगे, फर्स्ट 4 9th 12th की एंट्री होगी। रेंट पेड 5,000, सैलरी पेड 18,000। रेंट पेड 5,000, सैलरी पेड 18, एक ही एंट्री डालेंगे 15 को, 5 प्लस 20,000। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 18,000। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, नींद में भी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा टू कैश 23,000। ठीक है, बीइंग रेंट एंड कैश पेड, रेंट एंड सैलरी पेड। ठीक है, आगे 5 plus 18 23 ना, या नेक्स्ट। पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट रुपीज 12,000, प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट 12,000 पेड किया। प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, मैंने बोला हाउस रेंट पर्सनल हो गया, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 12,000 17, दिस इज ड्रॉइंग्स। उसका घर का पेमेंट किया, ऑफिस का नहीं, सो इट इज पर्सनल। 17 को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आज हम यहां पे रुकते हैं, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में, और एक और क्वेश्चन बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आई विल बी टेकिंग लेक्चर टुमारो एज वेल, आई विल अनाउंस द टाइम 12,000। ठीक है, कल मेरा लेक्चर नहीं है, बट स्टिल आई विल टेक द लेक्चर। ठीक है, तो कल हमारा ये बाकी भी जो एक क्वेश्चन बाकी वो हो जाएगा। सो हम 17 पे आके रुके। इफ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और रिमेनिंग हम कल करेंगे। एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? ओके, गुड, थैंक यू।